गुड इवनिंग, आई एम नेहा। वेलकम टू द डॉक्टर नेहरू चैनल। तो आज हम एमबीबीएस इन रशिया इस टॉपिक पे बात करेंगे मिस्टर इमरान खान से। तो आज हमारे साथ है मिस्टर इमरान खान, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉर श्योर एजुकेशनल कंसल्टेंसी। हेलो मिस्टर इमरान खान। हेलो नेहा। तो आज हम एमबीबीएस इन रशिया इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो आई वांटेड टू आस्क यू, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th and NEET exam, many students want to go in abroad for further education. So why they choose Russia? Why they choose us here? That's one of the most important factor is that Russia is very affordable in comparison of other countries like UK and Germany or Canada, and the living expenses is very low, and tuition fees is very low for 6 years. On an average, if we compare $100 to $200 per month students living cost. तो आप लगातार इतने सालों से रशिया में एडमिशन करते हैं स्टूडेंट्स की, तो व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स? Eligibility criteria for students, they must have 10 plus 2 passed 50% in physics, chemistry and biology, and student must have passed their NEET examinations with qualifying marks. For intake 2021 for this year, student must have for open category 138 marks, and for SC, ST and OBC category they must have 108 marks in NEET examinations. तो एडमिशन के बाद जब स्टूडेंट्स रशिया में आते हैं, तो इज इट नेसेसरी टू स्टूडेंट्स मस्ट नो द रशियन लैंग्वेज? Yes, of course, it is very necessary to learn Russian language, because first they have to learn basics words, because whenever they come to Russia they have to buy food stuffs, local stuff from local shops and shopping malls, so they must learn Russian language. And after third year Indian students, they have practical classes in hospitals also, so they have to take case history of the patients, so then they should know Russian language, because they have to talk in They can Russian. interact Yes, with yes, for Russian. local people, because mostly Russian people 90% they don't know English language, Yes. so a student must have learned Russian language. So for that, Russian university providing Russian classes? Yes, of course, like other subjects like anatomy, pharmacology, physiology, with those subjects, Russian language also is a subject there, and university is providing Russian language course also. And after completing 6 years, Russian universities provide you Russian language certificate also with other certificate. Yeah. What documents are necessary for Indian students must have? Essential documents like 10 plus 2 mark sheet scan copies Okay. they must have, and NEET qualified result they must have, and passport first page and last page students must have for registration and admission. If in case student don't have passport copies, then they should provide any proof ID like voter ID card, Aadhaar card, PAN card, driving license they can give. So is there any difference in between Russian and Indian medical education system? Yes, of course. What is major difference? कंपैरिजन ये है कि अगर हम इंडियन और रशियन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें, तो पहला जो पॉइंट यही है कि जो अफोर्डेबल फ़ीस, जो इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस लगभग 20 लाख पर ईयर फीस पड़ती है, और उसके हिसाब से अगर रशिया में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो फीस 5 से 6 लाख पर ईयर के करीब पड़ती है, वो भी टॉप 10 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो रशिया के अंदर है उसमें. So रशियन यूनिवर्सिटी में डोनेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है? ना, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, बिकॉज इन कंपेरिजन टू इंडिया यहाँ पे कोई डोनेशन वगैरह पे नहीं करना पड़ता है. लेकिन इंडिया में अगर जाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ स्टूडेंट्स को डोनेशन लगभग 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख उनकी डिमांड हाई रहती है, वो डोनेशन पे करना होता है उन लोगों को. इधर कुछ ऐसा नहीं है, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं है एडमिशन के लिए. और एक पॉइंट और ये भी है कि स्टूडेंट्स के लिए कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्री लेता है रशिया से, तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती है WHO से और यूनेस्को से, और उनको 6 साल पूरा करने के बाद उनको यूरोपियन डिप्लोमा भी मिलता है, तो वो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाकर भी जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उधर जाकर. ये भी एक अच्छा बेनिफिट है जो इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है. और स्टडी का जो बेनिफिट ये है कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स की स्टडी होती है, वो 6 से 8 या 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है, ग्रुप वाइज स्टडीज़ होती हैं, और उनके जो प्रैक्टिकल्स चलते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर
क्लासेस के अंदर जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर ग्रुप में ही स्टडीज़ होती है, तो उनको इजी होता है सीखने के अंदर, उनको फ़ायदा होता है। 6 से 8-10 लोग होते हैं ग्रुप के अंदर, तो टीचर से अच्छे से सवाल पूछ सकते हैं। पेशेंट के पास जाते हैं तो अच्छे से केस हिस्ट्री वगैरह अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के साथ। पर इंडिया में कैसा 25-30 लोगों का ग्रुप एक साथ होता है, एक पेशेंट को घेर के चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं, तो वो सब कुछ इतना नहीं मिलता है सीखने के लिए। पर रशिया में अच्छा होता है, ग्रुप वाइज स्टडीज़ होती हैं। और पर लेक्चर्स जो चलता है सभी स्टूडेंट्स का वो एक साथ होता है, 100 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट का लेक्चर एक साथ होता है पूरा एक लेक्चर हॉल के अंदर, तो अच्छे से वो लोग बैठ के उसमें लेक्चर्स अटेंड करते हैं। सो मैं अभी ये पूछने वाली थी कि MCI रिकॉग्निशन का क्या प्रोसीजर है रशियन यूनिवर्सिटी में? जितनी भी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहली बात तो ये है कि जो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया के अंदर। सारी यूनिवर्सिटीज़ 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं All are government. ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। Okay. सो जो रिकॉग्नाइज है सारी MCI से रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन से, NB से। स्टूडेंट्स को रशिया से डिग्री लेने के बाद 6 साल पूरा होने के बाद उनको MCI का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, FMGE का। उसके लिए भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में उनको कोचिंग प्रोवाइड होती है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो दिल्ली से यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, या ऑनलाइन क्लासेस भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम देखें कि अभी कुछ सालों में नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो सबसे अच्छा बेनिफिट फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए होता है कि उनको यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल्स हैं। लाइक मैरो से वो लोग क्लासेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का मिस्ड कोचिंग है, डैम्स हैं, वो लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और आपका प्रेप लेटर से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन कॉलेज में ये सब अवेलेबल नहीं है उनके लिए सब। तो ये बेनिफिट सबसे बड़ा है इंडियन स्टूडेंट्स का जो फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं। तो ईजीली वो लोग पढ़ते हैं और ईजिली वो MCI पास कर लेते हैं। और जैसे MCI पास होता है उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग उनका 1 ईयर का इंटर्नशिप करना होता है इंडिया में, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वो अपना प्राइवेट क्लिनिक में करें, हॉस्पिटल्स में करें, एज देयर विश। Okay, so what do you tell about accommodation? हाँ, अकोमोडेशन मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहने के लिए, क्योंकि जो हॉस्टल की फ़ीस होती है बहुत लो होती है और सभी पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो बाहर फ्लैट्स वगैरह में रहना चाहे रेंट करके रह सकते हैं। यहाँ पर फ्लैट भी फुल्ली सारा सब कुछ जितना भी इक्विपमेंट्स होता है फ्लैट्स के अंदर वो सारा अवेलेबल होता है, फर्नीचर वगैरह सब। और फ्लैट का रेंट भी अफोर्डेबल होता है, $150 to $200 पर मंथ इतना Is it पड़ता है। safe for all students? Yes, it is very safe to live in hostel and flats also, because every building they have computerized lock. So जब भी वो हॉस्टल के अंदर एंटर करते हैं या बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, तो उनको जो कीज़ होती है वो स्कैन करनी होती है, तभी मेन गेट खुलता है। उसके बाद फ्लैट का डोर खुलता है वो, और काफ़ी सिक्योर है। Okay. So what is fee structure about universities? फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फीस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, कुछ में कम है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, Okay. वहाँ की फैकल्टी कैसी है, और जो टीचिंग मीडियम है वो कैसा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग मीडियम जो है वो 4+2 है, मीन्स 4 साल वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं और लास्ट के 2 साल रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कैसा होता है फुल्ली 6 ईयर्स इंग्लिश मीडियम होता है, तो उनकी फ़ीस थोड़ी हाई पड़ती है। लाइक वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस लगभग पड़ती है फर्स्ट ईयर में 6.5 लाख के करीब उनको फ़ीस पड़ता है, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस मिलाकर। अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हॉस्टल्स कितने हैं, फैकल्टी कितनी है, उस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि फीस कितनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। So फुल इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हो? फुल इंग्लिश मीडियम में भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम ऑल ओवर टोटल एक्सपेंसेस देखें, एक स्टूडेंट का फीस, रहने का खर्चा, आने जाने का, इनकेस स्टूडेंट इंडिया आता जाता है समर वैकेशंस या विंटर वैकेशंस में, तो हम लोग 30 to 35 लाख का 6 साल का खर्चा मान के चलते हैं स्टूडेंट्स का कि इतना आएगा। ये बेसिक है, इतना अप्रोक्सीमेटली कि 30 to 35 लाख आके ही चलेगा। कंपेयर करते हैं अगर हम इंडिया से, तो अगर आप देखेंगे इंडिया में 1 ईयर की फीस ही 20 लाख पड़ती है, राइट। और यहाँ पे 5 लाख में फर्स्ट ईयर हो जाता है कंप्लीट, और 6 साल 30 से 35 लाख में हो जाता है। हाँ, और डोनेशन कुछ नहीं देना। इंडिया में तो अगर आप देखेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अगर हम बात करते हैं, तो 2 करोड़ के करीब मान के चलो MBBS कंप्लीट करने के लिए, राइट।
So, is there availability of mess for Indian यस students? सम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन फूड अवेलेबल होता है, मेस अवेलेबल है। लाइक इन वोल्गोग्राडी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो कैंटीन है कॉलेज की, उसके अंदर इंडियन फूड अवेलेबल है। लाइक आलू जीरा, बिरयानी, पूरी, राइस, प्लेन राइस, दाल, ये सब अवेलेबल है। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना खुद का मैस स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो स्टूडेंट्स को चाहिए अगर मैस उनको ज्वाइन करना, वो लोग मैस ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको लगता है वो खुद से खाना बनाएं, खाना खुद का खाना बना के खाएं, वो भी है उनके पास चॉइस Student ऑप्शन है। choice, yes. तो आप कितनी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट एडमिशन करवा देते हैं? अराउंड मैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर तो मैं सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज़ का हूँ। वोल्गोग्राडी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टारोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सारातो, निज़नी एंड आपका अस्ट्राखान और तांबोर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। Okay. और उसके बाद आती है सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी IM सचनेव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉस्को। Okay. लेकिन मॉस्को का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लगभग 12 से 13 लाख रुपए पर ईयर पड़ता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स प्रीफर नहीं करते हैं उसके लिए। तो एनी डिफरेंस इन बिटवीन ऑल यूनिवर्सिटीज और सब सेम है, सिर्फ फीस स्ट्रक्चर? हाँ, फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में आती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नंबर 1 है, जैसे मॉस्को यूनिवर्सिटी वो नंबर 1 है, तो उसका फी ऑफ कोर्स उसका फीस स्ट्रक्चर हाई, थोड़ा हाई रहेगा। और जो मॉस्को है वो रशिया की कैपिटल है, तो वहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा हाई हैं। वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा हाई है, इस वजह से फीस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। सो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट सिक्योरिटी, फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए इज इट सेफ रशिया, स्पेशली फॉर गर्ल्स? हाँ, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रशिया में पढ़ना बहुत सेफ है, बिकॉज जो रशिया और इंडिया के जो इंटरकनेक्ट लिंक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। फ्रेंडशिप पुरानी है रशिया और इंडिया के बीच में, इसी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। पुलिस फोर्स जो है वो अच्छी है, ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, यस, रशिया जो है वो वुमेन डोमिनेटेड कंट्री है, तो ये लोग प्रीफर करते हैं अपनी वुमेन्स के लिए हर फील्ड में, चाहे जॉब हो, एजुकेशन हो या सिक्योरिटी हो। स्टूडेंट्स का एडमिशन लेते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फ्रॉड एजेंसी से कैसे बचें? स्टूडेंट्स को जब भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो किसी अब्रॉड कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो एजुकेशन कंसल्टेंसी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑथराइज्ड है कि नहीं, ओके। वो एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी के अंडर में। दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में पे कर रहे हैं कि नहीं, या फिर बीच में जो एजेंट है उसको देना पड़ रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि एजेंट डायरेक्ट ऑथराइज्ड नहीं है यूनिवर्सिटी के थ्रू। कुछ एजेंट्स कम फीस ऑफर करते हैं कि हम लोग कम कंसल्टेंसी फीस पर एडमिशन करते हैं, कुछ कंसल्टेंसी फीस ज़्यादा हाई चार्जेस करती हैं। पर स्टूडेंट्स को लगता है कि जो कंसल्टेंट कम फीस चार्ज कर रहे हैं वो अच्छे एजेंट्स है ना, तो वो हमसे कम पैसे लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एजेंट्स कम चार्जेस करते हैं इंडिया में, लेकिन जब स्टूडेंट रशिया में पहुंच जाता है, दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है पढ़ने के लिए, उसके बाद वो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं कि ट्रेवलिंग का चार्जेस ले लिया, फूड का चार्जेस ले लिया, और बैंक अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस ले लिया, और वीज़ा के रिन्यू करने के नाम पे बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं पर ईयर। वो रिन्यूअल के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं पर ईयर स्टूडेंट से। तो 3-4 लाख वो स्टूडेंट से वो लोग खींच लेते हैं, वो फ्रॉड एजेंट्स टाइप होते हैं वो लोग। और बाद में जब स्टूडेंट रशिया आ जाता है, उनको देखते भी नहीं कि स्टूडेंट्स कहाँ पर है, कैसे रह रहा है, कैसे अफोर्ड कर रहा है, सब चीज़ें। इन कुछ कंसल्टेंसी हैं जो बहुत अच्छी एजेंसी हैं, जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। बेशक उनकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है, लेकिन वो स्टार्टिंग से लेके आपके डॉक्यूमेंटेशन से लेके आप रशिया में जब पहुंचते हैं, आपको पिकअप किया जाता है, आपको हॉस्टल में छोड़ा जाता है, आपको फ्लैट पर छोड़ा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बहुत सारे सर्विसेज हैं जो अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उनकी थोड़ी फीस थोड़ी हाई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एजेंसी ज़्यादा फीस हाई करके आपको ज़्यादा पैसा बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कनेक्टेड रहते हैं लास्ट ईयर तक हाँ, स्टूडेंट के लाइक साथ? जो मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर फॉर श्योर एजुकेशन कंसल्टेंसी का, और जो हमारे पास जो हमारी टीम है वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीम है। Okay. और वो जो हमारा काम क्या होता है, हम स्टार्टिंग से ही जो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स का, हम लोग स्टार्टिंग से स्टूडेंट के साथ बने रहते हैं। उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क जितना भी होता है, हाँ, जो फर्स्ट सर्विसेज होती है इंडिया में बिफोर अराइवल टू रशिया, वो सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास काउंसलर्स हैं जो एक्सपीरियंसड हैं, वो अच्छे से काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में जाते हैं, मिलते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी हम लोग देते हैं स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स से भी हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद जब
इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं एयरपोर्ट पे पिकअप करना, उनको पूरा यूनिवर्सिटी में रजिस्टर कराना, सारा काम हमारी टीम, एक्सपीरियंस टीम होती है, सारा काम वो करके देती है। ओके, तो हमारी ऑडियंस के लिए आपके कंसल्टेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेरी कंपनी है डॉक्टर फॉर श्योर एजुकेशन कंसल्टेंसी और मैं डायरेक्टर हूँ उसका, और मैं पिछले 8 साल से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैं रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इन सभी कंट्रीज़ में मेरे स्टूडेंट्स को भेजता हूँ। जिस टाइप से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए, मैं उस टाइप की उनको रिक्वायरमेंट देता हूँ। और बियॉन्ड द लिमिट जाके मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को नहीं, रशिया में अगर मैं अवेलेबल हूँ तो अदर कंसल्टेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनको भी मेरी हेल्प प्रोवाइड कराता हूँ ओके, विदाउट एनी सर्विसेज चार्जेस। मुझे कोई सर्विस का कोई मैटर नहीं करता है। और इसी वजह से मेरे 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं, नए स्टूडेंट्स, वो पुराने स्टूडेंट्स के रेफरेंस के थ्रू ही मेरे आते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ माई सर्विसेज, बिकॉज ऑफ माई कंपनी, because I'm creating the name of my company, Doctor for Sure. That's why I'm giving best services to my students. ओके। सो थैंक यू सो मच कनेक्टिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से, आप डॉक्टर नेहा के चैनल को, डॉक्टर नेहरू को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।